हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन आपको एक्सप्लानेशन करते हैं। आज हम लोग एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन एक्सप्लानेशन करेंगे ताकि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो जाए। लाइन बाय लाइन एक्सप्लानेशन करेंगे ताकि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो जाए। ओके, तो एनएलएम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, ये हमारा मैकेनिक्स का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जिसे हम लोग बहुत अच्छे से देखेंगे। तो लेट्स बिगिन। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं। कहता है, इन द प्रीसीडिंग चैप्टर आवर कंसर्न वाज टू डिस्क्राइब द मोशन ऑफ अ पार्टिकल इन स्पेस क्वांटिटेटिवली. We saw that uniform motion needs the concept of velocity alone, whereas non-uniform motion requires the concept of acceleration in addition. So far, we have not asked the question as to that governs motion of bodies. In chapter, we turn to this basic question. ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो बेसिक क्वेश्चन ये होगा, यहाँ पर ये कह रहा है कि वी शो दैट यूनिफॉर्म मोशन नीड्स कॉन्सेप्ट ऑफ वेलोसिटी अलोन वेयर नॉन यूनिफॉर्म मोशन रिक्वायर्स कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सेलरेशन. तो यहाँ पर हम लोग इस चैप्टर में यह क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे. फिलहाल इसको थोड़ा और पढ़ लेते हैं तो फिर और अच्छे से मैं एक्सप्लेनेशन करूँगा. कहता है, लेट्स फर्स्ट गेस द आंसर बेस्ड ऑन आवर common experience. To move a football at rest, someone must kick it to throw a stone upward. One has to give it an upward push. A bridge causes the branches of a tree to swing. A strong wind can even move heavy object. A boat moves in a flowing river without anyone throwing it. Clearly, some external agency is needed to provide force to move a body from rest. Likewise, an external force is needed also to retard or stop motion. You can stop a ball rolling down an inclined plane applying a force against the direction of its motion. कह रहा है कि ठीक है, यहाँ पर कह रहा है कि है ना, आपको यह कह रहा है कि let's first guess the answer based on our common experience. To move a football at rest, someone must kick it to throw to a stone upwards. One has to give it an upward push. A bridge causes the branches of a tree to swing. A strong wind can even move heavy object. A boat moves in a flowing river without anyone rowing it. Clearly, some external agency is needed to provide force to move a body from rest. Likewise, an external force is needed also to retard or stop motion. You can stop a ball rolling down an inclined plane by applying a force against the direction of its motion. In these examples, with the external agency of force, hands, wind, stream in contact with the object. This is not always necessary. A stone released from the top of the building accelerate downward due to the gravitational pull of the earth. A bar magnet can attract an iron nail from a distance. This shows that external agencies, gravitation and magnetic forces, can exert force on a body even from a distance. In short, force is required to put a stationary body in motion or stop a moving body, and some external agency needed to provide this force. The external agency may or may not be in contact with the body. So far is so good. But what if a body is moving uniformly? A stacker moving straight with constant speed on a horizontal high slab is an external force required to keep a body in uniform motion. ठीक है, देखिए ये पूरे पैराग्राफ का मैं ब्रीफ में आपको अच्छे से बता देता हूँ कि ये क्या कह रहा है. इस पूरे पैराग्राफ में एनसीईआरटी का ये जो हमारा इंट्रोडक्शन सेक्शन में ये यहाँ पर यह कह रहा है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट, जरा इसको समझने की कोशिश कीजिए. जैसे हमारे पास ये पेपर है ना, जैसे मैं कह रहा हूँ कि अगर कोई ऑब्जेक्ट
मान लीजिए रेस्ट में है, ठीक है, रेस्ट में है, और अगर कोई ऑब्जेक्ट मान लीजिए कि कांस्टेंट स्पीड से या कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है, इसको यूनिफॉर्म मोशन भी हम लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर यह कहने का मतलब ये हुआ कि अगर कोई वस्तु रेस्ट में है, ठीक है, जैसे यहाँ फुटबॉल का एग्जाम्पल दिया गया कि अगर फुटबॉल रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा अनटिल कि आप उसको किक नहीं करिएगा, लात से किक कीजिएगा तब तो आगे बढ़ेगा। तो फुटबॉल जो है, फुटबॉल रेस्ट में कब तक रहेगा, जब तक आप उसको किक नहीं कीजिएगा। या मान लीजिए कि ट्री है, अब ट्री शांत है, स्थिर है, जब तक तेज हवा नहीं चली तब तक उसका पत्ता इधर उधर नहीं करेगा, शाखा इधर उधर नहीं कर। देखते तूफान में इधर उधर उड़ने लगता है, लेकिन तूफान जब नहीं होता है तब वो पेड़ शांत रहता है। तो यहाँ पर यह कह रहा है कि अगर कोई भी वस्तु अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, और अगर मोशन में है ना, या फिर मान लीजिए कि अगर कोई वस्तु यूनिफॉर्म मोशन से चल रही है तो यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा अनटिल कि उस पर कोई एक्सटर्नल एजेंसी या एक्सटर्नल फोर्स वर्कआउट नहीं करे, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर कोई बॉल रोल कर रहा है, यूनिफॉर्म स्पीड से रोल करते जा रहा है, जब तक आप उसको रोकिएगा नहीं, फोर्स लगाकर रोकिएगा नहीं, तब तक वो बॉल रोल करता चला जाएगा, तब तक वो बॉल जो है रोल करता चला जाएगा। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये हुआ कि इस पूरे इंट्रोडक्शन सेक्शन में आपको यह कहा जा रहा है कि कोई भी वस्तु जो रेस्ट में है वो रेस्ट में ही रहेगी, या कोई वस्तु यूनिफॉर्म मोशन में है तो यो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगी। कब तक रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाहरी है ना, जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल एजेंसी या एक्सटर्नल फोर्स वर्क नहीं करे, ठीक है। तो इसी में कहा गया, और इसमें एक लास्ट में भी क्वेश्चन कहा गया है कि इज एन एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायर टू कीप ए बॉडी यूनिफॉर्म मोशन। तो इसमें यह कह रहा है कि क्या एक्सटर्नल फोर्स ज़रूरी है किसी भी वस्तु को यूनिफॉर्म मोशन में रखने के लिए, ठीक है। तो इस चीज़ को हमें समझना होगा कि हालांकि इसका उत्तर हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है, कि क्या ज़रूरी है कि नहीं है, लेकिन फ़िलहाल इस इंट्रोडक्शन सेक्शन में यह कहा रहा है कि आपको मैं फिर से दोहराऊं कि कोई भी वस्तु अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी, या यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगी। कब तक रहेगी, जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल एजेंसी वर्कआउट नहीं करे। मैंने एग्जांपल दिया फुटबॉल का, फिर मैंने एग्जांपल दिया ट्री ब्रांचेस का, और फिर मैंने एग्जांपल दिया रोलिंग डाउन जो बॉल हो रहा है, ठीक है, उसका। मैंने क्या कहा कि अगर फुटबॉल रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी जब तक उसको किक नहीं मारेगा। या फिर मान लीजिए कि पेड़ की शाखाएं हैं, टहनियाँ हैं, पत्तियां हैं, तब तक शांत रहेंगी जब तक कि है ना तेज़ हवा ना चले। जब तेज़ हवा चलेगी तो पेड़ की टहनियाँ, शाखाएं भी हिलेंगी डुलेंगी तेज़ी से। या फिर रोलिंग डाउन जो बॉल है वो भी जो है वो तब तक रोल करते रहेगा, वो तब तक रोल करते रहेगा, तब तक यूनिफॉर्मली रोल करते रहेगा जब तक उसको हम लोग बाहर से रोकने की कोशिश ना करें, ठीक है, उसको सामने से आके रोक ना ले, यानी एक्सटर्नल फोर्स ना लगाए, ठीक है। तो ये हमारा इस इंट्रोडक्शन का सार है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इंट्रोडक्शन से आगे बढ़ते हुए इस क्वेश्चन का आंसर जानने की कोशिश करेंगे। जो क्वेश्चन हमारा लास्ट में पूछा था कि किसी भी बॉडी को यूनिफॉर्म मोशन में रहने के लिए क्या एक्सटर्नल एजेंसी का होना ज़रूरी है, क्या एक्सटर्नल फोर्स का लगना ज़रूरी है, ठीक है। तो इसका आंसर जानने के लिए आज हम जो टॉपिक देखेंगे, मैं चाहूँगा कि आप प्लीज़ इस वीडियो को देखते हुए एनसीईआरटी के बुक को पैरेलली ओपन करके देखिए। इसमें तो मैं दिखा ही रहा हूँ, आप लोग खुद अपने टेबल पर एनसीईआरटी का बुक ओपन कर लीजिए ताकि आपको समझने में आसानी हो, ठीक है। अब यहाँ पर यह कह रहा है अरिस्टोटल फॉलेसी, ठीक है। अरिस्टोटल फॉलेसी, अरिस्टोटल एक साइंटिस्ट का नाम है। फॉलेसी का मतलब होता है फेलियर, ठीक, ड्रॉबैक।
कहता है द क्वेश्चन पोज एबव अपीयर टू बी सिंपल, हाउ एवर इट टुक एजेस टू आंसर इट. Indeed, the correct answer to this question given by Galileo and the 7th century was the foundation by Newtonian mechanics which signal the modern science. देखिए इसको तो पहले मैं पूरा पढ़ लेता हूँ, फिर मैं इसका सार बताऊँगा. कहता है द ग्रीक थिंकर अरिस्टोटल हेल्ड द व्यू दैट इफ ए बॉडी इज मूविंग समथिंग एक्सटर्नल इज रिक्वायर्ड टू कीप इज मूविंग. According to this view, for example, an arrow shot from a bow keeps flying since the air behind the arrow keeps pushing it. The view was part of an elaborate framework of ideas developed by an Aristotle on the motion. ठीक है, कह रहा है ना, on the motion of bodies in the universe. Most of the Aristotelian ideas on motion are now known to be wrong and need not concern us. For us purpose here, the Aristotelian law of motion may be phrased thus: an external force is required to keep a body in motion. देखिए अरिस्टोटल के अकॉर्डिंग उनका कहना था कि हाँ, कोई भी बॉडी को, कोई भी वस्तु को यूनिफॉर्म मोशन में रखने के लिए एक्सटर्नल फोर्स का लगना ज़रूरी है. उनका यह कहना था कि अगर कोई वस्तु जो है, कोई वस्तु को अगर हम यूनिफॉर्मली मोशन में रखना चाहते हैं तो उसको उस पर लगातार फोर्स लगाना ज़रूरी है. एक्सटर्नल फोर्स मतलब रिक्वायर्ड है उसको. ठीक है, अगर कोई वस्तु को यूनिफॉर्मली मोशन में रखना चाहते हैं तो उस वस्तु पर एक्सटर्नल फोर्स का लगना ज़रूरी है ना, लगाना पड़ेगा. ये अरिस्टोटल का स्टेटमेंट था. अब उनके स्टेटमेंट को ज़रा और अच्छे समझते हैं. क्या कह रहे हैं? कहते हैं कि अरिस्टोटल लॉ ऑफ मोशन इज फ्लॉ एज वी शैल सी, हाउ एवर इट. अब देखते हैं कि उनके बात में कितनी सच्चाई है. इट इज़ अ नेचुरल व्यू दैट एनी वन वुड होल्ड फ्रॉम कॉमन एक्सपीरियंस. Even a small child playing with a simple toy car on a floor knows intuitively that it needs to be constantly drag the string attached to the toy car with some force to keep it going. If it releases the string, it comes to rest. This experience is common to most terrestrial motion. External forces seem to be needed to keep bodies in motion. Left to themselves, all bodies eventually comes to rest. कहता है अरिस्टोटल कहते हैं कि हम लोग बचपन में टॉय कार को लेके ऐसे नहीं, हम लोग बचपन में आप देखे होंगे कोई छोटा सा बच्चा अभी भी मेला ठेला में देखते होंगे कि इस तरह से एक टॉय कार ले लेता है, उसमें एक रस्सी बांध के और उसको जो है इस तरह से बढ़ाते रहता है. ठीक है, इस तरह से आगे बढ़ाते रहता है. तो कहता है कि उसको जो है टॉय कार है, कहता है कि टॉय कार constantly drag the string attached to the toy car with some force to keep it going. If it releases the string, it comes to rest. The experience is common to most. वही कह रहा है कि जैसे मान लीजिए टॉय कार है, टॉय कार बच्चा इसको लेके जा रहा है, धीरे धीरे लेके जा रहा है और वो जो है एकाएक जो है वो अगर मान लीजिए बच्चा इसको लेते हुए लेके जा रहा है और जब वो स्ट्रिंग है ये इसको लेके आगे की ओर बढ़ रहा है आज जैसे ही छोड़ देगा तो ये टॉय कार भी रुक जाएगा. ये टॉय कार भी क्या है, रुक जाएगा. तो यहाँ पर क्या है कि कार को अगर लगातार चलाना है तो बच्चे को उसके जो धागा है उसको लगातार खींचना पड़ जाएगा. ठीक है, बच्चा को खींचना पड़ेगा, धागा को लगातार खींचना पड़ेगा तब ना वो चलेगा टॉय कार. तो यहाँ कॉन्स्टेंटली फोर्स लगाना पड़ेगा. ठीक है, कि इस कार को लगातार चलाने के लिए. ठीक है, तो अब इसमें यह कहता है कि व्हाट इज़ द फ्लॉ इन अरिस्टोटल आर्ग्यूमेंट. द आंसर इज अ मूविंग टॉय कार कम्स टू रेस्ट because the external force of friction on the car by the floor opposes its motion. To counter this force,
The child has to apply an external force on the car in the direction of motion. When the car is in uniform motion, there is no net external force acting on it. The force by the child cancels the force friction. The corollary, if there is no friction, the child could not be required to apply any force to keep the toy car in uniform motion. ठीक है, कहता है द अपोजिंग फोर्सेस सच एज फ्रिक्शन विस्कोस फ्री फोर्सेस ऑलवेज प्रेजेंट इन नेचुरल वर्ल्ड. दिस एक्सप्लेन बाई फोर्सेस बाई एक्सटर्नल आर नेसेसरी टू ओवरकम द फ्रिक्शनल फोर्सेस टू कीप बॉडीज इन यूनिफॉर्म मोशन. नाउ वी अंडरस्टैंड वेयर अरिस्टोटल वेंट रॉन्ग. देख रहे हैं यहाँ पे क्या लिख रहा है कि अरिस्टोटल वेंट रॉन्ग. ही कोडेड द प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन द फॉर्म ऑफ बेसिक आर्ग्यूमेंट. To get it the true law of nature, forces and motion, one has to imagine a world in which uniform motion is possible with no frictional forces opposing. This what Galileo did. देखिए ये जो मैंने पैराग्राफ पढ़ा अरिस्टोटल फोलेसी, इसी को मैं समझाने की कोशिश करता हूँ. ठीक है, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा. यहाँ पर यह कह रहे हैं अरिस्टोटल साहब ये कहते हैं कि अगर मान लीजिए कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है, ठीक है, इसको निरंतर मोशन में रखने के लिए इस पर लगातार एक्सटर्नल फोर्स लगाने की ज़रूरत है. इस पर लगातार एक्सटर्नल फोर्स लगाने की ज़रूरत है. ठीक है, इस पर लगातार एक्सटर्नल फोर्स लगाने की ज़रूरत है. लेकिन देखिए अगर मान लीजिए कि मैं यहाँ पर आपको यह कह रहा हूँ कि डिपेंड करता है. अगर सरफेस फ्रिक्शनल, देखिए बार बार जैसे ये टॉय कार है, अब इस टॉय कार को बच्चा लगातार क्यों खींच रहा था? क्योंकि इस डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स वर्क कर रहा है. कौन सा फोर्स कर रहा है? फ्रिक्शनल फोर्स, है ना. फ्रिक्शनल फोर्स है ना, इसको मैं लिख देता हूँ समझने के लिए. फ्रिक्शनल फोर्स वर्क कर रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स वर्क कर रहा है. तो उसके प्रभाव को ख़त्म करने के लिए बच्चे को लगातार अप्लाइड फोर्स ग्रेटर अमाउंट में, ग्रेटर मैग्नीट्यूड में आगे की ओर लेके जाना पड़ता होगा. ठीक है, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स प्रेजेंट है सरफेस पे. ठीक है, तो यहाँ पर अरिस्टोटल साहब का कहना था कि बॉडी को यूनिफॉर्म मोशन में रखने के लिए उनका जो स्टेटमेंट ये था, मैं लिख दे रहा हूँ कि टू कीप द बॉडी इन द यूनिफॉर्म मोशन. ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड. एक्सटर्नल है ना फोर्स इज नीडेड या रिक्वायर्ड. ठीक है, रिक्वायर्ड है. ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो है अरिस्टोटल साहब का कहना था कि बॉडी को यूनिफॉर्म मोशन में रखने के लिए एक्सटर्नल फोर्स का रिक्वायरमेंट है, एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा. लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा, कंडीशन देना चाहिए कि सरफेस, ये यहाँ पर एक कंडीशन उन्होंने छोड़ दिया कि फ्रिक्शनल सरफेस पर, अगर सरफेस फ्रिक्शनल है, क्योंकि अगर मान लीजिए कि सरफेस फ्रिक्शनल नहीं है, मान लीजिए कि व्हेन देयर इज लीस्ट फ्रिक्शन या नो फ्रिक्शन, तो यहाँ पर क्या है कि इस कंडीशन में जो है एक्सटर्नल फोर्स की कोई आवश्यकता नहीं है. एक्सटर्नल फोर्स की कोई आवश्यकता नहीं. अगर सरफेस फ्रिक्शन लेस है या लीस्ट फ्रिक्शन है या ऑलमोस्ट स्मूथ है, देखते हैं मार्बल का रहता है तो ऑलमोस्ट स्मूथ रहता है, अगर वैसा है तो वहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स की कोई आवश्यकता नहीं है. ठीक है, कोई आवश्यकता नहीं है. तो ये गैलीलियो साहब का यही कहना था, उनका यही कहना था कि अगर जो है यूनिफॉर्म मोशन में रखने के लिए बॉडी को एक्सटर्नल फोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं होगी. कब नहीं होगी? जब लीस्ट फ्रिक्शन हो या
सरफेस के पास कोई फ्रिक्शन नहीं हो। तो ये थोड़ा गैलीलियो का ड्रॉबैक था, उनका कहना था कि उन्होंने सरफेस को रिस्पेक्ट नहीं किया, सरफेस पर रिगार्डिंग नहीं कुछ बोला, ठीक है, कि सरफेस कैसा होना चाहिए। उन्होंने डायरेक्ट कहा कि नहीं, बॉडी को यूनिफॉर्म मोशन में रखना है तो उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगाना ही पड़ेगा, ठीक है। लेकिन गैलीलियो ने कहा कि ऐसा तभी करना पड़ेगा जब सरफेस जो है रफ सरफेस हो। फॉर रफ सरफेस के लिए वो स्टेटमेंट सही है, लेकिन फॉर स्मूथ सरफेस के लिए अरिस्टोटल साहब का जो कहना था वो गलत है, ठीक है। उनको कहना चाहिए कि फॉर रफ सरफेस ओनली, लेकिन उन्होंने ये बात एड ऑन नहीं किया। चलिए कोई नहीं, तो आपको समझ में आ गया होगा अरिस्टोटल फेलोसी। मैंने बताया कि अरिस्टोटल साहब का कहना था कि एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा बॉडी को यूनिफॉर्म मोशन रखने के लिए, लेकिन जो है गैलीलियो ने कहा कि बॉडी को यूनिफॉर्म मोशन में रखने के लिए एक्सटर्नल फोर्स या एक्सटर्नल एजेंसी की रिक्वायरमेंट तभी होगी जब सरफेस रफ हो। अगर सरफेस रफ नहीं है, सरफेस स्मूथ है, सरफेस फ्रिक्शन लेस है, तो उस कंडीशन में इसकी एक्सटर्नल फोर्स की कोई अनिवार्यता नहीं है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लॉ ऑफ इनर्शिया और न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को देखेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, ठीक। हैप्पी दशहरा।